Hello, good morning to all my dear students. Now, this video is completely related to coordinate geometry and it is a very important chapters for all the students, those who want to really score more marks in your board exams. So, in this in this series, we will cover the different concept and fundamental theories principle related to coordinate geometry. So let's start our this video, and this video is completely related to coordinate geometry. So before starting our this chapter, okay, firstly we can briefly revise the basic terms that is our in our earlier videos and everyone done in your earlier class, that is your क्लास 9th. अब क्लास 9th में इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से उसको आप ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हो, लेकिन उसके बाद भी इट इज़ नेसेसरी टू रिवाइज ऑल द फंडामेंटल कंसेप्ट, देन लिंक योर प्रीवियस नॉलेज टू योर न्यू कंसेप्ट रिलेटेड टू योर क्लास 10th. If you are first time in our my channel Mission Education Hub, then okay, if and this video is really helpful for you, so you can subscribe this channel and press bell icon so you can getting more notification related to your best subject maths. Okay, so now we can start our this chapters. Once again, welcome to all my dear student. Okay, so firstly we can understand what is coordinate geometry. Okay, you know what is geometry and what is ordinate and what is coordinate. इसको हम जो थ्री जो डिफरेंट थिंग्स है उसको वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी reference or fixed point. Okay, suppose that if we want to locate the position of railway station, okay, so how can we represent their position? Okay, nowadays generally we are using generally with respect to sea level. Okay, we can compare the height of any railway station. Okay, you can compare any state from any railway station with respect to sea level. And why? Because sea level is always fixed at everywhere. So similarly, if we want to represent locate position of any object, it may be a solid object or it may be any object, any types of object, it is necessary to understand how can we represent their location, how can we represent their position. So it is necessary to calculate with respect to fixed point. Okay, जब हम फिक्स पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन कैलकुलेट करते हैं तब उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बोलते हैं. बट इन दिस चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री सारे जो लोकेशंस हैं, सारे जो पोजीशंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द प्लेन. ओके, ऑन द प्लेन, सो इट इज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. ओके, सो फर्स्टली वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, it is the branch of maths to represent a location of any object. Okay, any object with respect to a reference point okay, in other words we can say fixed point on the plane okay, on the plane means what? On the paper. Okay, means that we can represent all the geometry problems से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे चीज़ को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन द पेपर.
Okay, so that is the coordinate geometry. Okay, then coordinate geometry के बाद हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं okay how many types of quadrant. Okay, so we can try to understand Cartesian plane. Okay, what is Cartesian plane? So Cartesian plane means that two line, okay, two line, suppose that first one is x y dash and second one is x dash. Okay, when two line intersect each other in such a form that the angle at intersecting point is right angle 90 degree. Okay, then it is a Cartesian plane. तब इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ए कार्टेशियन प्लेन व्हेन टू लाइन x डैश y डैश इंटरसेक्ट बोथ इच अदर एट ए पॉइंट. ओके, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज द ओरिजिन पॉइंट, क्योंकि यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट हुआ है ऐसा वी कैन कंसिडर. ओके, सो दैट इज ए कार्टेशियन प्लेन. ओके, देन ओ एक्स डैश रिप्रेजेंट मीन्स साइन कन्वेंशन जब हम इसमें अप्लाई करेंगे, सो ओ एक्स एंड ओ वाई रिप्रेजेंट प्लस क्वाड्रेंट. ओके, देन ओ एक्स डैश माइनस एंड ओ वाई रिप्रेजेंट प्लस, मीन्स दैट इट इज अवर सेकेंड क्वाड्रेंट. Third quadrant both are negative. On the second quadrant, first one is negative, second one is positive, and third one is both are negative, and finally last one is negative and okay, last one is positive and negative. How can we remember their sign convention? Firstly, we can take a position of एक्स एक्सिस, मीन्स जो अभी हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन रिप्रेजेंट करेंगे, सो फर्स्ट वी कैन रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस को हमको क्या करना है, फिक्स रख के रखना है. ठीक है, सपोज एक्स एंड वाई हुआ, कोई सा भी एक पॉइंट हुआ पी, इस पॉइंट पी का लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हम लोग का फिक्स पॉइंट हो जाएगा, रिफरेंस पॉइंट हो जाएगा. ओके, इस रिफरेंस पॉइंट के कंपेयर में जब हम किसी भी अदर ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, लोकेशन कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, वाई बिकॉज ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है, ओके, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस में है, तो फर्स्ट वी कैन टेक एक्स एंड सेकेंड वन वाई. तो ऑलवेज रिमेंबर जब हम ऐसे क्वेश्चंस का लोकेशन कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक्स को लेंगे और सेकेंड में क्या रहेगा, वाई. इसको आप अपोजिट भी कर सकते हो, लेकिन आपको ऑलवेज क्या है, एक ही रूल्स को फॉलो करना है. ऑलवेज वन रूल्स को आप अप्लाई करेंगे तभी आपका जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा. सारे बुक्स में क्या करते हैं, फर्स्ट एक्स को कंसिडर करते हैं और सेकेंड वाई को करते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको भी यही करना है, लेकिन हमारे इजी के लिए हमें हमेशा हम लोग का आंसर सही आए और हमको याद भी रहे, इसलिए क्या करते हैं, फर्स्ट वी कैन रिप्रेजेंट द लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, देन सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, मतलब ये एक्स से और y से कितने डिस्टेंस पर है. सो दैट इज द कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि साइन कन्वेंशन. तो जब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम करेंगे, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो जब हम ऐसा करते हैं तो फर्स्ट वी कैन कंसिडर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ दे आर ऑर्डिनेट, एक्स का भी और वाई का भी, दोनों का भी क्या होगा यहाँ पर, बोथ आर पॉजिटिव. ओके, एक्स भी और वाई भी क्या होंगे, इसमें पॉजिटिव होंगे. सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम जंप करते हैं तो फर्स्ट वन एक्स, क्योंकि ये एक्स को ही आपको फर्स्ट करना है, इधर आप गए थे तो राइट साइड में पॉजिटिव मिला था, बट नेगेटिव में आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा. तो फर्स्ट वन इज नेगेटिव, सेकेंड वन इज पॉजिटिव. ओके, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा. ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर जंप करते हैं तो ये एक्स और ये वाई बोथ आर क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड हुआ और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ, तो दोनों होंगे इसमें नेगेटिव हो जाएंगे.
लास्ट है हम लोग को फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये एक्स का हमको फर्स्ट कंसिडर करना है तो पॉजिटिव, देन सेकेंड वाई का करेंगे तो वाई इन नेगेटिव डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वी कैन यूज हियर माइनस साइन। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए बहुत ही बेसिक है, इतना तो हमको आता है। और चलिए उसी को एक बार रिवाइज करते हुए इसको कंटिन्यू कर लिए है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज ऑर्डिनेट। ओके, व्हाट इज ऑर्डिनेट इफ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स या विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तब इसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए दोनों के लिए फर्दर डिफरेंट नेम हो जाता है, ठीक है। ओके, हाउ ऑर्डिनेट, इन अदर वर्ड्स डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा, कैसे, ओके। सो फर्स्ट वी कैन ड्रॉ अगेन कार्टेशियन प्लेन। यू नो, अभी मैं बताया कि क्या होता है कि जब भी टू लाइन इंटरसेक्ट करते हैं और उनके बीच में कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो अब जो अलग अलग क्वाड्रेंट में जो डिवाइड हो रहा है, तो इस प्लेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। जहाँ पर जियोमेट्री से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसको हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दैट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन हुआ। तो इस यहाँ पर किसी भी पॉइंट का ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन होगा वो क्या होगा, 0 और 0 होगा, दोनों के लिए क्या होगा, 0 और 0 हो जाएगा। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस से कोई सा भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर ये सपोज 2 सेंटीमीटर है, कितना है, 2 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट हियर एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो ऑलवेज रिमेंबर द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। आप किससे कर रहे हो, एक्स एक्सिस से करोगे तो हो जाएगा ये एक्स ऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स ऑर्डिनेट या एक्स ऑर्डिनेट, या फिर उसी को ही हम लोग क्या बोल देंगे, द डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, सिमिलरली द डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ओके, इट इज नोन एज वाई ऑर्डिनेट या एप्सिस बोलते हैं। ओके, व्हाट इज वाई ऑर्डिनेट और एप्सिसा। ओके, व्हाट इज एप्सिसा, इसका जो सेकेंड नेम है इसको आप रिमेंबर रखेंगे। ओके, सपोज दैट इट इज अवर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, देन डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है, क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, P। तो जब ये x से y विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, जब हम y एक्सिस से कर रहे हैं तो ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। जब आप x एक्सिस के रिस्पेक्टिव में करोगे तो y के पैरेलल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन यही बनता है कि द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू x इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, ये जो लाइन है वो y के पैरेलल है, यस और नो। सिमिलरली जब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो ये एक्स का एक्सिस के पैरेलल हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिसा या फिर वाई ऑर्डिनेट। तो इस नेम को आपको याद रखना है। यहाँ पर एक न्यू चीज़ था ये एप्सिसा, आप सबको ये आता है, आप लोग प्रीवियस क्लास में इसको आप लोग किए हो। ओके, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लिंक हुआ। अब इतना लिंक होने के बाद हम लोग करते हैं, हम लोग का जो मेन टास्क रहेगा दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला। ओके, सो डिस्टेंस फार्मूला जब भी हम करते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो पाइथागोरस थ्योरम।
ओके ओके बाय because by the help of this Pythagoras theorem we can calculate the distance of any object in जियोमेट्रिकल प्लेन। जो हम लोग का कार्टेशियन प्लेन है उसमें हम क्या करेंगे, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर दिस डिस्टेंस फार्मूला, डेरिवेशन फॉर डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ओके सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो जो लोअर वैल्यू रहता है उसको हम हायर वैल्यू से ही क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। ये सबको तो पता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालोगे, सपोज कैसे, ओके सपोज फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, ओके L1 and L2 that is 4 centimeter and this one 10 सेंटीमीटर। ओके ये 10 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब हमको निकालना है कि इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, इन दोनों के डिस्टेंस में कितना का वेरिएशन है। तो क्या हो जाएगा 10 - 4 = 6 सेंटीमीटर। जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं, जब भी हमको दोनों में कितना चेंजेस है, कितना वेरिएशन है, ये करने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। सो सिमिलरली जब हम डिस्टेंस निकालेंगे कि वो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कितने कितने डिस्टेंस पर है, तो एक्चुअल में उसमें दोनों में डिस्टेंस क्या होगा ये हमको बताना रहता है। ओके कैसे देखते हैं, पहले इसके जो एप्लीकेशन है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पी है ओके एक्स और ये वाई, तो ये यहाँ पर क्या है, ओरिजिन हुआ। तो इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये इस पॉइंट से ओ से पी तक कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पी में लोकेट है। तो ओरिजिन से ओ से इसका डिस्टेंस कितना है ये हमको निकालना है। बट ये किस में है, ये कार्टेशियन प्लेन में है। तो कार्टेशियन प्लेन में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कंसीडर करते हैं। बट ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बीच में है या कहीं पर भी है, ऐसा नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। ओके ये कहीं पर भी ये टर्न कर सकता है। तो इसका लोकेशन या फिर इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो हमको कैलकुलेट इस टॉपिक में हमको सीखना है। ओके तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ओके सो फर्स्ट वी कैन ड्रॉ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके फर्स्टली वी कैन ड्रॉ फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। And take one object located at point P and from origin, okay, that is our started point. Okay, calculate their distance OP, means we can represent either D or R। ठीक है, हम या तो D से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को या फिर O से R से भी करते हैं। ओके वी कैन कंसिडर the location of P, okay, the location of P is how much, x and y, x and y है। ओके अब यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन हो सकता है। x मीन्स व्हाट, ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, ये x को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली जब हम y एक्सिस में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस में हो जाएगा। ठीक है ओके ये तो हम लोग का क्या हुआ, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तब हम इसको इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसे कर सकते हैं इसको, ओके यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। यस और नो, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ कि नहीं, OPX एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। लेकिन जो फर्स्ट हम डेरिवेशन डिराइव करेंगे वो स्टार्ट नहीं होगा स्टार्टिंग पॉइंट से, वो कुछ सम डिस्टेंस से क्या होगा, वो स्टार्ट होता है। मतलब ये यहाँ से क्या है, कनेक्ट है, तो इसके टाइप्स में आ जाएगा। तो फर्स्टली वी कैन अंडरस्टैंड देयर फर्स्ट फॉर्म दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम सम डिस्टेंस टू O। ओके अब इसको मैं क्यों किया था, क्योंकि हम लोग जनरली इसी से ही फेमिलियर रहते हैं कि कोई सा भी जो ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्टिंग पॉइंट से ही करते हैं। ठीक है तो इसके जो मेन जो स्टैंडर्ड
जो इसका डायग्राम है या फिर जो इक्वेशन है उसको हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तब उसके एप्लीकेशन में आ जाएंगे कि इसको हम क्यों यहाँ पर ड्रॉ किए थे। ओके, नाउ सो लेट्स वी ड्रॉ कोऑर्डिनेट x एंड y। अब ये सम डिस्टेंस में है, ठीक है। पहले इसको हम ओरिजिन से स्टार्ट किए थे, अब ये क्या हो गया, ये P एंड Q है, ठीक है। 2 पॉइंट है। ओके, स्टार्टिंग में जब ये यहाँ पर है, सो ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस में है कि नहीं है। ओके, सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन के लिए ऑन द एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट मिल रहा है, P भी मिल रहा है और Q भी मिल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकेंड पॉइंट को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो P रिप्रेजेंट x1 y1। सिमिलरली इसको भी जब ज्वाइन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ऑन द एक्स एक्सिस में x मिलेगा और y एक्सिस में क्या मिलेगा, y मिलेगा, ठीक है। इसको हम ज्वाइन कर लिए। ओके, सो इट इज़ x1 एंड इट इज़ x2। सिमिलरली ऑन द y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, y1 एंड y2। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट का लोकेशन क्या क्या हो जाएगा फिर इसके हिसाब से, x1 y1 y, बिकॉज फर्स्टली वी कैन राइट द x एक्सिस में जो लोकेशन है उसको हम लिखते हैं, तो x1 और y1। सिमिलरली ऑन q, तो q के लिए क्या हो जाएगा, x2 एंड y2। ओके, रिमेंबर always that to firstly we can write the location of x axis on the x axis and then further y axis. Okay, then calculate the location of p and q. ओके, ठीक है, हमको p and q का क्या करना है, लोकेशन कैलकुलेट करना है। ओके, x1 एंड ये क्या था हम लोगों का, x2 था। ओके, जब इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे तो एक इसको हम पर्टिकुलर पॉइंट दे देते हैं और इसको भी कंटिन्यू प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से इसको हमको डिराइव करना है। एंड पी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, पी एम एंड पी एन। ओके, अब ये जो x1 है वो क्या होगा, O2m, O2m का डिस्टेंस x1 एंड O2n का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 होगा। ओके, सिमिलरली व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ OP, सॉरी PM का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1 एंड QN का डिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल है y एक्सिस का तो वो y2 होगा। ओके, मीन्स ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट डिस्टेंस इज y2, कितना होगा, y2, और यहाँ से r से n तक का डिस्टेंस क्या होगा, y1। थोड़ा यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझिए कि टोटल डिस्टेंस ये y एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट कितना है, y2 है, सो इट इज़ y2। सिमिलरली r से n तक कर हम यहाँ से तक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस के भी पैरेलल है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का y1 होगा, क्योंकि वो y एक्सिस के लिए कर रहे हैं। जब x एक्सिस की बात करेंगे तो अभी इससे पहले किया था, तो यहाँ से यहाँ तक का x1 और यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ओके, इन ट्राइंगल PRQ, ठीक है। PRQ क्यों कर रहे हैं कि हमको मिड पॉइंट को ऐसे पॉइंट में रखना रहता है जहाँ 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री इसमें R में बन रहा है, सो PRQ, इन ट्राइंगल PRQ, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, PRQ। उसको सेपरेट ड्रॉ कर लेते हैं PRQ को। ओके, PR एंड Q, यहाँ पर 90 डिग्री था। ओके, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, एवरीवन नो, बाय
पाइथागोरस by Pythagoras theorem PQ square is equal to PR square plus QR square. Okay. According to Pythagoras theorem, hypotenuse square, okay, it is hypotenuse, base and perpendicular. So hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. ये हम लोगों का क्या हुआ, फार्मूला हुआ. ओके, देन वी कैन पुट 1 by 1 देयर डिस्टेंस. अब यहाँ से हम लोगों को पी आर कैलकुलेट करना है. ओके, वेयर इज पी आर, ये पी आर हुआ हम लोगों का. एंड वेयर इज क्यू आर, ये क्यू आर हुआ. तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं. ओके, उस वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका बता देता हूँ कि एक सपोज कोई सा भी एक लाइन है ए बी, ठीक है, इसका जो टोटल लेंथ है वो है 10 मीटर. ओके, देयर टोटल लेंथ इज 10 मीटर. इसमें कोई सा भी एक अदर पॉइंट है सी, ठीक है, एंड बी एंड सी का जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर. ओके, सॉरी 5 सेंटीमीटर कर लेते हैं. चलो कुछ और ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर. ओके, तो 3 सेंटीमीटर के हिसाब से ये इधर मूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी पॉइंट. ओके, हमको एक्यूरेट तो आएगा, करने का ज़रूरत भी नहीं है. और हम लोग को क्या करना है, कंसिडर कर सकते हैं. ओके, बी टू सी का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए टू सी. ओके, कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, 10 है. और जो अनदर 2 पॉइंट है उसका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है. सो व्हाट इज द रिमेनिंग पोर्शन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, वो कैसे आएगा, 7 आएगा. बट 7 आया कैसे, जब हम कंप्लीट में से जो हमको पता है जितना डिस्टेंस हमको आता है उस चीज़ को क्या किए हम लोग, माइनस किए. ओके, वी नो देयर ए बी इक्वल टू 10 मीटर. एंड इतना हमको पता है, इतना लाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं 7 आ गया, बट 7 आएगा कैसे, माइनस करने से आएगा. तो कैसे करेंगे तो 7 आएगा, देखते हैं. यही जो कंसेप्ट है हम वहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है. तो ए सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी सी, ठीक है. ए बी इज इक्वल टू 10, बी सी इज इक्वल टू 3. तो ये कितना आ गया, 7 मीटर. यही सेम कंसेप्ट आपको कहाँ अप्लाई करना है, इसके लिए अप्लाई करना है कि हमको इस कंप्लीट लेंथ से देख लो, यहाँ y1 से r तक टोटल हुआ, ठीक है, या फिर इसी के पैरेलल क्या है, ओ एन भी है. तो इस ओ एन से हमको क्या करना है, इस इतना को हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है. इतना को क्यों कैलकुलेट करना है, वाई, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम में हमको पी आर मिला है. तो इस पी आर का वैल्यू आपको चाहिए. सिमिलरली इसके लिए जब करेंगे परपेंडिकुलर के लिए तो क्यू आर चाहिए. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टोटल लेंथ से क्यू एन से इतना को हम माइनस कर देंगे, है ना, जितना हमको पता है. और उसमें से टोटल में से क्या कर लेना है, उसको हमको माइनस सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो हमको उसका आंसर फाइंड आउट होता है, ठीक है. तो चलिए इसको वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. ओके, एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि जो एम एन है वो पैरेलल है पी आर का. एम एन, ये एम हुआ ये एन हुआ, पैरेलल पी आर. यस, सिमिलरली क्यू आर, जो क्यू आर है वो पैरेलल है किसका, इसके लिए पैरेलल है ना, y1 y2 का पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक. ओके, तो जब भी ऐसा हम करते हैं तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं. टोटल डिस्टेंस इज, यहाँ से x1 है तो ये x2 रहेगा. ओके, x के लिए हम करते हैं फॉर x, या फिर x एक्सिस में हम पहले जंप करते हैं. ओके, सो ओ एम इज इक्वल टू x1. ओके, ओ एन इज इक्वल टू
x2, यस, ओ एम ये मिला हमको, यस, और ओ टू एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। सिमिलरली ओ पी एम, ठीक है, पी एम इज इक्वल टू क्या होगा, पी एम इज इक्वल टू y1 एंड क्यू एन इज इक्वल टू होगा y2। ये तो टोटल लेंथ हो गया। चलिए अब हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, ओ एन क्या करना पड़ेगा, एम एन का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो एम एन इज इक्वल टू पी आर, ध्यान से देखिए, इतना को हमको चाहिए ना, इस वैल्यू को, ये जो पैरेलल है इसका, तो एम एन इज इक्वल टू पी आर, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना है, ओ एन माइनस ओ एम। ओके, ओ एन का वैल्यू कितना है, x2 है, ओ एम का वैल्यू कितना है, x1 है, ठीक है। तो पी आर इक्वल टू कितना मिला, x2 माइनस x1। ओके, पी आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1। बहुत ही ईजी है बट ये इंपॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी मैं क्या बताया कि टोटल में से हमको रिमेनिंग पोर्शन को माइनस करेंगे तो जो हमको चाहिए वो गेटिंग हो जाता है। सिमिलरली फॉर y, ओके, y के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर किया है, तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं क्यू आर को, ठीक है। तो क्यू आर कैसे मिलेगा, क्यू आर इज इक्वल टू, टोटल कितना हुआ, क्यू एन, टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यू एन, तो क्यू एन माइनस, हमको ये पता है इतना चाहिए, तो टोटल में हम इतना को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर एन। ओके, तो क्यू एन इज इक्वल टू y2 एंड आर एन इज इक्वल टू y1। ओके, तो सो दैट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर। अब ये जो y1 है, आर एन, ठीक है, देख लेते हैं, जो आर एन है वो पैरेलल है ओ y1, है कि नहीं है, इतना जितना है उतना ये भी है, तो ये जब y1 है तो ये भी तो y1 होगा, तो उसी को ही मैंने क्या किया हूँ, क्यू एन इज इक्वल टू, ओके, क्यू एन इज इक्वल टू y2 एंड पी एम, ओके, वेयर इज पी एम इज इक्वल टू, हम लोग का ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये टोटल मिल जाएगा। ओके, इतना होने के बाद ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू, हम लोग डिस्टेंस ले सकते हैं, पी आर का वैल्यू कितना हुआ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज द पी क्यू स्क्वायर। देन फाइनली वी कैन राइट हियर पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इस फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो जब भी हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैलकुलेट करेंगे इसी फार्मूला को ही अप्लाई करेंगे। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए, यहाँ पर फर्स्ट हम लिखे हैं x2 को, फिर x1, y2 एंड y1। यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनके मिड में देख लेते हैं माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि माइनस यूज़ करना है। ओके, एग्जांपल लेते हैं फिर अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, रखना कि जब भी अंडर रूट के अंडर में हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका कोई सा भी जो वैल्यू है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है ना, क्या है, स्क्वायर में है। तो अगेन 16 इंटू 16, ये 2 बार आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2। अभी इसके पहले में 4 इंटू 4 था, क्योंकि 2 बार है तो कर दिया।
तो 16 का वैल्यू क्या होता है 4 and 2, so 4/2 unit. Okay, that is the distance between these two given point. Okay, third one, calculate the distance between AB and second one is minus and minus B. अब इसमें हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सेम है, यहाँ पर डिजिट था, अब उसको क्या कर दिया है अल्फ़ाबेट कर दिया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कंसेप्ट को रिमेंबर रखना है कि आपको फर्स्ट क्या करना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देन y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ओके, एंड माइनस है माइनस बी। ओके, ध्यान से चलो करते हैं। x1 इज इक्वल टू a, y1 इज इक्वल टू b, x2 इज इक्वल टू माइनस a, y2 इज इक्वल टू माइनस b। इतना सारा चीज़ हो गया। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 y1 x2 y2 ऑन आवर स्टैंडर्ड फार्मूला pq इज इक्वल टू, उसमें हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x2 इज इक्वल टू, ओके, x2 पहले है तो x2 का वैल्यू क्या है माइनस है, ओके, देन माइनस साइन यूज करेंगे। x1 इज इक्वल टू a प्लस y2, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 माइनस b। ये जो माइनस है वो हम लोग का फार्मूला से है और ये जो माइनस है वो अपने न्यूमेरिकल डेटा वो गिवन है, ओके, b। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना ये a और a कैंसिल नहीं होगा ना, कुछ लोग इसको कैंसिल कर देंगे लेकिन कैंसिल नहीं होगा, दोनों में बोथ में क्या है सेम साइन है तो वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अल्टरनेट साइन रहता तो क्या होता वो सब्ट्रैक्ट हो जाता, बट बोथ हैव सेम साइन, सो वी कैन ऐड। तो माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस 2b होल स्क्वायर, तो माइनस 2 का करेंगे तो ये 4a का स्क्वायर एंड 4b का स्क्वायर। अब a और b तो हम प्लस नहीं कर सकते, ये b अलग है ये a अलग है, बट यहाँ से 4 को कॉमन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं 4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ध्यान रखना अब ऐड उसी को कर सकते हो जो सेम हो, जैसे डिजिट में है तो 2 और 2 है, कुछ भी डिजिट रहे उसको हम कर सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट में अलग अलग वेरिएबल है तो उसको आप प्लस कैसे करोगे, सेम होना चाहिए ना, ए है और ए रहेगा तो उसको प्लस कर सकते हो, बी है और बी है तो उसको आप प्लस कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके, दैट इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम। ओके, देन प्रोसीड टू क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट first point which represent P 0 and 0, second one is Q 36 and 15। ओके, अब यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर हो रहा है कि जो फर्स्ट पॉइंट का जो लोकेशन है वो क्या है 0 and 0 है, तो 0 और 0 का मीनिंग क्या है कि पॉइंट इज स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले मैं आपको एक बताया था जब इसका हम डिराइव कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो स्टैंडर्ड के लिए वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो कुछ सम डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है, ये हम लोग क्या किए थे कंसिडर किए थे। बट इसके लिए अब क्या है P 0 and 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 0 and 0 है मीन्स वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाउ समझते हैं, देखो, ओके, X हुआ और ये Y हुआ, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है P में और ये P से स्टार्ट हो रहा है, क्यों मीन्स 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 0 and 0 है, x1 का वैल्यू 0 है और y1 का भी वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है। सेकेंड पॉइंट है Q, क्या है Q, ये 36 है और ये 15 है, ओके। अब इसको हम ज्वाइन कर दिए तो डिस्टेंस क्या मिला PQ मिला, इसको निकालना है तो सेम फार्मूला हो जाएगा। सो राइट हियर x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू भी 0, x2 इज इक्वल टू 36 प्लस एंड y2 इज इक्वल टू 15। पुट कर देते हैं x2 माइनस x1 36 माइनस 0 प्लस
15 माइनस 0। ओके, अब इस क्वेश्चंस को देने का उसका मेन क्या मोटो रहा होगा कि जब 0 0 रहेगा तो आपको उसको थोड़ा रिकॉल करना है कि दैट पॉइंट इज स्टार्टेड फ्रॉम इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये इसका मेन मोटो था, है ना। सॉल्व करना चीज़ अलग है, थोड़ा सा उसके बारे में हमको थिंक करना भी नीड है। ओके, सो 36 का स्क्वायर 36 माइनस 0 करेंगे 36 ही आएगा। 15 माइनस 0 15। ओके, अब इसको हमको कैलकुलेट कर लेना है। 36 इंटू 36 15 इंटू 15, फिर दोनों को हम प्लस करेंगे और उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। तो 36 एंड 36 इज इक्वल टू 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 36 और 3 39, 3 कैरी हुआ, 3 3 जा 9 10 12 1 2 9 6। सिमिलरली 15 इंटू 15 255 देख लेते हैं। 15 इंटू 15 5 5 जा 25 2 10 12 1 1 225। तो इसको किए तो कितना है 225। ओके, अब प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, देन 11, ओके, देन 5, ओके 1 5 1 9। अब यहाँ पर ये यूनिट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि जो लार्ज वैल्यू है उसको आप स्क्वायर रूट निकाल, 1 मार्क्स का है पता चल रहा है इसी में ही आप पूरा टाइम कर दिए, ये ऐसा नहीं। हमको आता है, इसको निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हमको मार्क्स के हिसाब से करना रहेगा तो ध्यान रखिएगा। तो इसका भी आप इतना आंसर करते हो, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। ओके, देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। जो हम फार्मूला अभी कैलकुलेट किए थे उसी फार्मूला को आपको क्या करना है, अब अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, व्हाट इज कोलिनियर, पता है, यू नो व्हाट इज कोलिनियर। ओके, जितने भी क्लोज ऑब्जेक्ट हैं, स्क्वायर के क्या प्रॉपर्टी होते हैं, रेक्टेंगल के क्या प्रॉपर्टी होते हैं, रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी होता है, पैरेललोग्राम्स के क्या प्रॉपर्टी होते हैं, ये सारा प्रॉपर्टी आपको फर्स्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, इसमें आ सकते हैं कि कोलिनियर क्या होता है, आइसोस्केल क्या होता है, ये जो टर्म्स हैं, ठीक है। आइसोस्केल मीन्स क्या होता है, उसके जो टू साइड हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये सारा चीज़ आपको पहले क्लियर होना चाहिए, तभी इसमें जो आप लोगों का क्वेश्चंस रहेंगे वो सब क्या हो सकता है, आपको फिर इजीली सॉल्व उसको आप कर पाएंगे। ओके, तो इसके एप्लीकेशन को जानने से पहले हम कुछ जो प्रॉपर्टी हैं, सपोज स्क्वायर की बात करें, ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड और इक्वल। ओके, ठीक है, ऑल साइड आर इक्वल। सपोज आपको बोल देता है कि 4 पॉइंट दे दिया है, P Q R एंड S, ये दिया हुआ है। अब आपको बोला जा रहा है कि प्रूव दैट P Q, ओके, P Q Q R R S एंड S P इज ए स्क्वायर। ये जो 4 पॉइंट आपको दिया है उसको प्रूव करना है, स्क्वायर है। तो आप कैसे करोगे, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसके जो सारे साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्क्वायर के साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उसके जो डायगोनल है वो भी तो इक्वल होता है, ठीक है। तो एक स्क्वायर ड्रॉ करूं, ओके, तो P Q R एंड S, ओके, P Q R एंड S। तो P Q इक्वल टू Q R इक्वल टू, तो इसके डायगोनल भी क्या हो जाएंगे, P R इज इक्वल टू Q S। तो ये जो कंसेप्ट हमको पहले पता रहेगा तब तो इस हम डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करके उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सेकेंड, सिमिलरली फॉर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, A B C एंड D। तो A B
इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, एंड देयर डायगोनल भी इक्वल रहेंगे, तो क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी डी। मीन्स ऐसे आपको फार्मूला अप्लाई करके उसके कंसेप्ट को रिवाइज करके आप उस डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करेंगे, तब आपको मिलेगा जो भी आपको बोला रहेगा, है ना। सपोज कोलिनियर है या आइसो स्केल है। ओके, सपोज कोलिनियर का मतलब देख लेते हैं, ए बी एंड एक थर्ड पॉइंट क्या है, सी है। जब जितने भी पॉइंट रहेंगे वो एक ही लाइन से क्रॉस हो रहे हैं, देखो 1 2 3, तो क्या है एक ही पॉइंट से क्या है वो क्रॉस है, तो क्या हुआ, दैट इज कोलिनियर। अब कोलिनियर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी होगा कि नहीं। जब ये कोलिनियर रहेगा तभी ये तो आएगा हम लोग के पास आंसर। कोलिनियर मीन्स ऑल द पॉइंट्स आर क्रॉसिंग थ्रू वन लाइन, या फिर जो लाइन रहेंगे वो एक सिंगल पॉइंट से, एक ही जितने भी पॉइंट रहेंगे सारे पॉइंट उसी लाइन में क्या होगा, कवर होगा। ये सारे पॉइंट क्या है, इसी लाइन में है। देखो एक और मैं ऐसा कर देता हूँ, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, और ये एक इधर है, तो ये इधर गया, लेकिन इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन ये यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, सो दैट इज़ नॉट कोलिनियर। तो लीनियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही होता है, और कोलिनियर मतलब जितने सारे भी पॉइंट रहेंगे सारे एक ही लाइन में होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये फंडा अप्लाई करना पड़ेगा कि टोटल जो लेंथ रहेगा इन दोनों का प्लस के ही बराबर होगा ना, तो उसको कोलिनियर के लिए हम ऐसे अप्लाई करेंगे। यदि ऐसा वैल्यू आता है तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा।